سماعت عمران خان نااہلی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے درخواست دائر کی تھی اور اس درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی، سیکرٹری اسمبلی اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اب سے کچھ دیر بعد اس درخواست پر سماعت کریں گے۔ عمران خان کے نااہلی کا فیصلہ معطل ہوگا یا نہیں، سب نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست کی اب سے کچھ دیر بعد سماعت ہوگی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر نے درخواست دائر کی تھی۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عامر، بتائیے کہ اس حوالے سے کب تک شروع ہوگی سماعت؟ جی اب سے کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اس درخواست پر جس میں ان کا یہ موقف ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ان کو نااہل قرار دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے وہ خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے اور الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں تھا کہ وہ عمران خان کو نااہل قرار دیتا۔ اس میں عدالت نے جب یہ سماعت کے لیے کیس مقرر کیا تو اعتراضات کے ساتھ منظور کیا کیونکہ رجسٹرار آفس کی طرف سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے کہ درخواست مکمل ہے کیونکہ مصدقہ نقل الیکشن کمیشن کے حکم نامے کی تاحال عدالت کو موصول نہیں ہوئی، لہٰذا یہ درخواست نامکمل ہے۔ عمران خان خود پیش بھی نہیں ہوئے، بایو میٹرک بھی نہیں کروایا، تاہم عدالت نے ان اعتراضات کے ساتھ ہی اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے اور فیصلہ ہوگا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی نااہلی کا الیکشن کمیشن کا جو حکم ہے وہ بحال رہتا ہے یا معطل ہوتا ہے، عمران خان اہل قرار پاتے ہیں یا نااہل قرار پاتے ہیں۔ اس بات کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب سے کچھ دیر بعد کرنا ہے اور اس درخواست کے ساتھ ساتھ جو اسٹے آرڈر کی درخواست ہے وہ بھی ساتھ میں منسلک کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس حکم کو معطل کر دیا جائے جب تک اس مین اپیل کا فیصلہ ہوتا کیس کا، تب تک اس حکم کو الیکشن کمیشن کے حکم کو معطل کر دیا جائے، یہ بھی درخواست ساتھ میں اٹیچ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسٹے آرڈر دیا جائے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اب سے کچھ دیر میں سماعت ہوگی۔ عامر سعید عباسی، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکمران انہیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سڑکوں پر نہ آئے۔ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعرات کا ہوگا۔ آئندہ انتخابات میں 2/3 اکثریت نہ ملی تو اقتدار قبول نہیں کریں گے۔ مزید کہنا ہے کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس بار بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے اور پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ ہماری حکومت نے بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ امپورٹڈ حکمرانوں کا مقصد جمہوریت نہیں، اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں۔ مراسلے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو لانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قانون کی حکمرانی تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی فرمانروا اور ولی عہد سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر گئے ہیں۔ وہ سعودی انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت بھی کریں گے جبکہ سعودی ولی عہد کا اگلے ماہ پاکستان کا دورہ بھی متوقع ہے۔ کینیا میں معروف پاکستانی صحافی ارشد شریف جاں بحق ہو گئے۔ ان کی موت حادثہ ہے یا قتل، کینیا کی پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق سینئر اینکر پرسن ارشد شریف چند دن قبل برطانیہ میں مقیم تھے جہاں سے وہ کینیا کے دارالحکومت نیروبی پہنچے تھے۔ ارشد شریف کی موت حادثے کے نتیجے میں ہوئی یا انہیں قتل کیا گیا، اس حوالے سے کینیا کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ ارشد شریف کی موت کی تصدیق ان کی اہلیہ نے اپنے ٹویٹ میں کی اور لوگوں کو قیاس سرائیوں سے گریز کرنے کی درخواست بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سی ڈی اے کی جانب سے سری نگر ہائی وے اسلام آباد پر واقع مارکیز کو مسمار کرنے کا معاملہ، مارکیز کی مسماری کے بعد ملبہ تاحال اٹھایا نہیں جا سکا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن سابقہ حکومت کے دور میں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز مریم الہی سے۔
की 25 किलोमीटर तवील श्रीनगर हाईवे रोड के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज से 2 साल कबल जो है कुछ तामीरात थी, कुछ शादी हॉल्स, मार्कीज़ थी और जिनको CDA की जानिब से डिमोलिश कर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो है वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत इस जगह को ब्यूटिफाई किया गया। यहाँ पर श्रीनगर हाईवे को जो है पौधे लगाए गए, दरख्त लगाए गए, इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया। ये जो बिल्डिंग्स यहाँ पर गिराई गई, इनका मलबा अभी तक यहाँ पर मौजूद है। ये वो जगह है जिसके बारे में CDA का ये मौक़िफ़ है कि जी ये जो है थोड़ी सी मुतनाज़ जगह है, इसका ये इलाका जो है CDA भी ओन करता है। कुछ ज़मीन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो भी ओन करते हैं और जो प्राइवेट एंटिटीज़ जिनकी ये बिल्डिंग्स थी या मार्केट्स थी वो भी इसको ओन करते हैं। उसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा एक मुतनाज़ जगह हो गई है जिसको प्रॉपरली कोई कम्प्लीटली ओन नहीं कर पा रहा। और ये जो मलबा आपने यहाँ देखा है, ये सारा मलबा यहाँ पर अभी तक मौजूद है जो कि इस जगह की खूबसूरती के ऊपर और श्रीनगर हाईवे की ओवरऑल मेंटेनेंस के ऊपर एक जो है वो धब्बा है और उनकी मेंटेनेंस को, इसको जो है हुकूमती जो सर्विलेंस है उसकी ज़रूरत है ताकि इसको क्लियरली साफ़ किया जाए, यहाँ से उठाया जाए, जो भी इस मसले का हल है उसकी तरफ पहुँचा जाए और इस जगह को जो है दोबारा बहाल किया जाए। जी, अभी हम खबर आप तक पहुंचाएं। इमरान खान नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए और जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ उसी नशिस्त की हद तक था। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की जानिब से ये कहा गया, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये भी दिए कि इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। अभी इस दरख्वास्त पर समाअत जारी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस दरख्वास्त पर समाअत कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दलाइल दिए गए कि इलेक्शन आ रहे हैं, इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ उसी नशिस्त की हद तक था। इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। अभी इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। इमरान खान की नाअहली का फैसला मुअत्तल होगा या नहीं, उस हवाले से ये दरख्वास्त है जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत कर रहे हैं और PTI चेयरमैन ने हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अक़लियतों के हकूक़ की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। हिंदू बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को यकसा हकूक़ हासिल हैं। एक दूसरे की खुशियों में शिरकत से रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। दिवाली के त्यौहार की मुनासिबत से वज़ीर आला ऑफिस में खुसूसी तकरीब, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब ने हिंदू और दीगर अक़लियती बरादरियों के साथ मिलकर केक काटा। हिंदू और दीगर अक़लियती बरादरियों की जानिब से वज़ीर आला को अजरक का तोहफा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि एक दूसरे की खुशियों में शिरकत से रवादारी और भाईचारे को फ़रोग़ मिलता है। अक़लियती बरादरी के लिए मुलाज़मतों में 5% कोटे पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मैट्रिक से आला तालीम तक 50% नंबर हासिल करने वाले अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अरकानी सूबाई असम्बली नवाज चांडिया, अब्बास अली शाह, मोहम्मद शफीक, हबकूक रफीक बाबू, सैमुल याकूब, मोहिंदर पाल सिंह समेत दीगर ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर पोशी की। चौधरी परवेज़ इलाही ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए ओवरहेड ब्रिज की तामीर का ऐलान किया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही का कहना था कि ओवरहेड ब्रिज का तखमीना लगाकर जल्द काम शुरू होगा। ज़ायरीन के लिए पार्किंग के मसले को भी हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी और भाईचारे का फ़रोग़ औलिया कराम की तालीमात का खासा है। तो अब कुछ बात की जाए मौसम की, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत का जो है नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले रुख करेंगे गिलगित का। तो गिलगित का दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गिलगित के बाद रुख करेंगे मरी का। तो मरी में इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है, जबकि कोयटा की बात की जाए तो वहां पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। आखिर में बात करेंगे कराची की। तो कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है। तो ये तो थे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत। अब जरा मजमूई मौसमी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का। तो जहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 74 है, मॉडरेट है। नमी का हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 50% रिकॉर्ड की गई है, जबकि हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो इस्लामाबाद के बात करेंगे लाहौर की, तो लाहौर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो है वो 17 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 321 है, कल से कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 57% है, जबकि हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो लाहौर के बाद अगला शहर हमारे पास है कराची। तो कराची के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 162 है, अनहेल्दी है, लेकिन कल की निस्बत आज कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कम है। इसके बाद हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो 78% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो कराची के बाद जो अगला शहर है वो हमारे पास पेशावर का है। तो पेशावर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 293 है, जो कि बहुत ज़्यादा है बाकी शहरों की निस्बत। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 59% है, जबकि हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो पेशावर के बाद अगला शहर हमारे पास है कोयटा। तो कोयटा का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो 135 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 59% बताया जा रहा है। हवा की रफ्तार की बात की जाए तो वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो कोयटा के बाद अगला शहर हमारे पास मरी है। तो मरी का दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 103 है। मरी में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता जा रहा है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 46% रहेगी, जबकि हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो मरी के बाद अगला शहर हमारे पास गिलगित है। गिलगित के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन है, 17 है। हवा में नमी का तनासुब 34% बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। तो ये तो थे मुल्क की आज मजमूई मौसमी सूरत हाल। मौसम की तफसील से सूरत हाल आपने जानी। मौसम की तब्दीली के साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी का मसला भी बढ़ने लगा है। लाहौर 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदा शहर हो गया। आइंदा चंद रोज़ में बारिश का भी इम्कान नहीं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। बिल्कुल, गुज़श्ता चंद रोज से मौसम में तब्दीली का रुझान जारी है और दर्जा हरारत में कमी देखी जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासब 37% होगा, जबकि हवा जो है तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा जोहर टाउन का इलाका है, जिसमें 467 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मेन बुलवार्ड 463, कोल लखपत 403 और गुलबर्ग जैसे इलाके में भी 368 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त क्योंकि दर्जा हरारत कम हो रहा है, इसलिए जो भी फ़ज़ाई आलूदगी उठ रही है वो ऊपर नहीं जा रही, जिसकी वजह से एक स्मोक की कैफियत पैदा हो रही है। गो के इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम जारी हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो है वो इस फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी आज जो मिसाल है कि दुनिया का इस वक्त आलूदा तरीन शहर लाहौर को करार दिया जा रहा है, जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। जी, इमरान खान के इलेक्शन कमीशन का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 3 रोज़ में दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। इमरान खान नाअहली केस मुसद्दिका फैसले के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी करने से इनकार। इमरान खान नाअहली केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 3 रोज़ के लिए मुलतवी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइए कि इस हवाले से क्या समाअत हुई है?
देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में एक रुकनी बेंच ने समाअत की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की उस दरखास्त पर जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें खिलाफ कानून नाअहल करार दे दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सबसे पहले एतराज़ात पर बताएं कि एतराज़ात क्यों दूर नहीं किए जा रहे, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि पहला एतराज़ बायोमेट्रिक का था, तो अदालत ने कहा कि थ्रू अटर्नी आप अपने एतराज़ात दूर करें, बायोमेट्रिक करें और हाजिरी लगवाएं। दूसरा एतराज़ ये था कि मुसद्दिका नकल नहीं अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई, तो अदालत ने कहा कि एक मुसद्दिका नकल बगैर दस्तखत आपने इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर असील कर दिया है, आपने चैलेंज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हम बगैर दस्तखत एक ऑर्डर को कैसे मुअत्तल कर सकते हैं या उसके ऊपर कोई हुक्म कैसे जारी कर सकते हैं। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर जो इमरान खान के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा एक हमें सियासी तौर के ऊपर मुश्किलात का सामना है और एक अर्जेंसी, अदालत ने कहा कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक एक हुक्म जारी किया है, वो हुक्म में कोई अगर कानूनी नुक्स है तो उसका अदालत मुसद्दिका नकल हासिल करने के बाद ही जायजा ले सकती है कि क्या वो कानून के मुताबिक है या नहीं। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने बार बार अदालत से इस्तदा की कि इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि हम बगैर दस्तखत एक गैर मुसद्दिका डॉक्यूमेंट को कैसे मुअत्तल कर सकते हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपको क्या जल्दी है, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि हमने इलेक्शन लड़ना है, इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बात की वजाहत की कि जिस कानून के तहत आपको नाअहल करार दिया गया है वो उस सीट की हद तक था जहां पर आप पहले इलेक्ट हुए थे, लिहाजा अब आप अगर दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें, जो 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कोरम एजेंसी में, आप वहां पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस पर जो बैरिस्टर अली जफर है उन्होंने कहा कि साथ में इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म दे रखा है, जिस पर अदालत ने कहा कि वो कार्रवाई कौन सा एक दिन में शुरू हो जाती है, उसमें सेशन जज के पास जाएंगे, नोटिस होगा, 1 महीना लगेगा उस कार्रवाई में, लिहाजा इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम इस हुक्म को मुअत्तल नहीं कर सकते जिसकी मुसद्दिका कॉपी ही नहीं है। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर के ऊपर आज ही इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा मुअत्तल करने की पीटीआई की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद कर दी और ये कहा कि 3 दिन का वक्त देते हैं, आप इलेक्शन कमीशन का मुसद्दिका फैसला लेकर आए, उसके बाद अदालत फैसला करेगी कि वो फैसला कानून के मुताबिक था या नहीं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नाअहली केस की समाअत 3 दिन तक मुलतवी कर दी और पीटीआई को हदायत की कि वो 3 रोज के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर सैयद अब्बासी आपका।